वजीर सेहत हरीश राव ने कामारेड्डी जिले में हामिला खवातीन को तग़ज़िया की फराहमी के लिए KCR किट्स का आगाज़ किया। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि माँ और बच्चे के सेहतमंद होने के लिए न्यूट्रिशन किट्स फराहम की जा रही है। पहली किट, दूसरी किट और तीसरी किट भी फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस स्कीम से तकरीबन 1.25 लाख हामिला खवातीन को फ़ायदा होगा। पहले मरहले में ये किट्स 9 अजला के 231 सरकारी मराकज़ सेहत में तकसीम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला अवामी मसाइल पर तवज्जो दे रहे हैं, साथ ही सेहत आमा भी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। కిట్ అనేటువంటిది ఇది ముఖ్యంగా ఈ ఎనీమియా ఎక్కువగా ఉండేటువంటి 9 జిల్లాల్లో ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేస్తా ఉన్నాం. తప్పకుండా రాబోయే రోజుల్లో అందరికీ కూడా అందించేటువంటి ప్రయత్నం మనం చేసుకుందాం. ఇవాళ తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చినాక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు చాలా బాగైనాయి. తెలంగాణ రాకముందు 30% డెలివరీలు మాత్రమే ప్రభుత్వ దవాఖానాలలో అవుతుండే. కానీ ఈరోజు 66% డెలివరీలు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లోనే అవుతున్నాయి. అంటే నమ్మకం పెరిగింది, సేవలు పెరిగినాయి. ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చాలా బాగా ఆసుపత్రులను బాగు చేయడానికి పెద్ద ఎత్తున డబ్బులు ఇచ్చినారు. మాతా శిశు సంక్షేమ ఆసుపత్రులు ఒకప్పుడు 6 మాత్రమే ఉండే, ఇప్పుడు 26 మాతా శిశు సంక్షేమ ఆసుపత్రులు మన రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. అంతేకాకుండా పడకలు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఇంతకుముందు 17,000 పడకలు ఉంటే వాటిని 28,000 పడకలకు పెంచుకున్నాం. అంటే దాదాపు 11,000 బెడ్స్ కొత్తగా తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత మనం యాడ్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఐసీయూలు ఒకప్పుడు 200 బెడ్సే ఉండేది మొత్తం రాష్ట్రంలో ఐసీయూ బెడ్స్. ఈరోజు ఐసీయూ బెడ్స్ను 6,000కు మనం పెంచుకోవడం జరిగింది. ఇవాళ మీకు ఇంకో మంచి వార్త చెప్పాలి. తల్లి మరణాలు, శిశు మరణాలు ఒకప్పుడు చాలా ఎక్కువ ఉండేది. గర్భిణీ స్త్రీ దవాఖానకు పోతే చాలా మంది తల్లులు లేదా బిడ్డ కానీ చనిపోయేది. మనం గత 6-7 ఏళ్లుగా బాగా కష్టపడి మన డాక్టర్లు दिल्ली शराब मामले में BRS MLC कविता का नाम एक मरतबा फिर आने की इत्तला है। साउथ ग्रुप में कलीदी किरदार अदा करने वाले इंडो स्पिरिट MD समीर महेंद्र के खिलाफ दाखिल चार्जशीट में कविता का नाम ED की जानिब से लिया गया है। साउथ ग्रुप में कविता के अहम रोल की इत्तला है। कबलजी रिमांड रिपोर्ट में भी उनका नाम सामने आया था। बीजेपी के रियासती सरबराह बंडी संजय ने मुनशियात के मामले पर वजीर तारक रामाराव को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि KTR ने बैरून मुल्क जाकर मुनशियात के सिलसिले में अपना इलाज करवाया है। उन्होंने मुतालबा किया कि रियासत में मुनशियात के मामले के सिलसिले में SIT की रिपोर्ट पेश की जाए। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि BRS कायदीन की जानिब से इख्तियार की जाने वाली जबान पर लोग हंस रहे हैं। అమెరికానే దేశం పోయిండు, దేశం పోయి అన్ని ట్రీట్మెంట్ చేసుకున్నాడు. దాని తగ్గట్టు నేను చూడండి, మీరు ఫేస్ చూడండి, గతంలో ఫేసు ఇప్పుడు ఫేస్ చూడండి. ఆ ఫేస్లో భయము ఇప్పుడు డ్రంక్ అండ్ టెస్ట్ చేస్తారు. టెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు అనుకుంటే అప్పుడప్పుడు దొరికితే ఇది 90 రోజులు సంవత్సరం ఉంటుంది అంటే ఇది. బట్ ఇప్పుడు బంద్ చేసింది. ఇక అన్ని టెస్ట్ ప్రిపేర్ అయ్యి ప్రిన్సిపల్తో క్వశ్చన్ అడిపించుకొని ఈయనే అడిగిపించుకొని దానికి ఆన్సర్ ఆయన అయిపోయినా అన్నట్టు. అంటే మదం ఎక్కింది, బాగా మదం బాగా తలకాకి ఎక్కింది. బిడ్డనేమో అరవింద్ గారిని చెప్తాను కొడతా అంటాడు, అయ్యనేమో బండి సంజయ్ని 6 ముక్కలు నడుపుతా అంటాడు, కొడుకేమో బండి సంజయ్ని చెప్తాను కొడతా అంటాడు. అంటే ఈ కుటుంబం యొక్క అహంకారం చూడండి. ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి పదవిన చెప్పుతో సమానం అంటారు, మీడియాని తిడతారు, పోలీసులను బూతులు తిడతారు, కుల సంఘాలను తిడతారు. వాళ్ళ మీద ఎవ్వరు మారితే ముఖ్యమంత్రి కొడుకు, ముఖ్యమంత్రి బిడ్డ, ముఖ్యమంత్రి అల్లుడు రారబర కొట్టడం, చెప్పుతో కొడతా అనడం, అసభ్యంగా మాట్లాడము, అహంకారంతో మాట్లాడము. పైసలు బాగా వచ్చినాయి, అధికారం ఉంది, అవుతామేది. మరి ఎడమైన తెలివి బండి సంజయ్ తింటా అన్నాడు. शहर हैदराबाद में जराइम की शरह साल 2021 की तरह है। गुज़िश्ता साल कत्ल की 89 वारदातें हुई थीं, ताहम इस मरतबा ये तादाद घटकर 63 हो गई है। अगवा की गुज़िश्ता साल 220 वारदातों के बरखिलाफ जारिया साल 225 वारदातें हुई हैं। ख़वातीन के खिलाफ जराइम की गुज़िश्ता साल 21,998 वारदातें हुई थीं, जो जारिया साल 22,060 रही हैं। गुज़िश्ता साल कत्ल की
59 वारदातों के बरखिलाफ जारिया साल ये वारदातें सिर्फ 63 ही रही हैं। ख़वातीन के खिलाफ जराइम गुज़िश्ता साल 2524 वारदातों के बरखिलाफ जारिया साल 2652 वारदातें हुई हैं। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पोस्को मामला 399 रहे हैं। साइबर जराइम की वारदातें जो गुज़िश्ता साल 2066 थीं अब 2249 हो गई हैं। बदल रहा है आजकल साइबर क्राइम जो है वो बहुत बढ़ गया है। एक 20 तरीके के साइबर क्राइम्स हैं, फ्रॉड्स हैं, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हो या लोन फ्रॉड्स हो। लोगों को हैका कर उनको फिशिंग लिंक्स भेजकर उनके वो क्लिक करते ही लोग उसमें फंस रहे हैं और साइबर क्राइम के विक्टिम्स बन रहे हैं। तो ये क्राइम हम ज़्यादा तौर पर आजकल देख रहे हैं। हमारे दिन में 100 FIR तक जारी होते हैं सिटी पुलिस में, उसमें करीब 20 से 25 FIR साइबर क्राइम के आ रहे हैं। तो इसीलिए हम ये साल हमारे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ही नहीं, हर पुलिस स्टेशन में साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेट करने का, साइबर क्राइम की तहकीकात करने के लिए हमने स्पेशल यूनिट्स बनाए हैं, ट्रेनिंग दी है और आगे चलकर इस पर पूरा फोकस हमारा रहेगा, क्योंकि लोगों का नुकसान इसमें ज़्यादा होने वाला है आने वाले दिनों में। मैं सब शहरियों से भी दरख्वास्त करता हूं कि आप ये साइबर क्राइम के तहत अलर्ट रहें। आप किसी भी ऐसे अननोन वेबसाइट्स, अननोन लिंक्स आप दबाइए मत, क्योंकि जब आप उसको प्रेस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो आपके पूरे फोन में जितने भी आपके डिटेल्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, वो सब उनके हाथ। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट धर्मापुरी अरविंद ने वजीर तारक रामाराव को सख्त जवाब दिया, जिन्होंने सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय को चैलेंज किया था कि वो मनशियात के टेस्ट के लिए तैयार हैं। मीडिया से बात करते हुए अरविंद ने कहा कि क़ब्ल-ए-ज़ीं KT रामाराव ने वादा किया था कि वो कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट वो रियासती सरबरा रेवंत रेड्डी को मनशियात के टेस्ट के लिए अपने बाल देंगे। उन्होंने सवाल किया कि KTR ने अपने बाल क्यों नहीं दिए। मल्लापुर में साबिक मेयर B राम मोहन की सदारत में बड़े पैमाने पर क्रिसमस की तकारीब मुनक़िद की गई। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव न सिर्फ तेलंगाना के ईसाइयों बल्कि मुल्क भर के ईसाइयों की हिमायत करते हैं। కాన్స్టిట్యున్సీలో కార్పొరేటర్లు మర్మూరు రంజన గారు, అదేవిధంగా బండార ప్రవీణ్ గారు, గన్ను కృష్ణ గారు, హనుమంతరెడ్డి గారు, అదేవిధంగా CI గారు, ఎక్స్ కార్పొరేటర్లు, సీనియర్ నాయకులు అందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఉప్పల్ కాన్స్టిట్యున్సీలో దాదాపు 500 మంది పాస్టర్స్ అందరినీ కూడా ఎన్నికల నుంచి క్రిస్టియన్ ఫ్యామిలీస్ అందరినీ కూడా ఇక్కడ వేదిక మీద నుంచి TRS నాయకులు మరియు అలా ఉద్యమం నుంచి ఉన్న నాయకులందరినీ కూడా ఇక్కడికి అందరినీ కూడా మరి సమావేశపరచుకొని మంచి ప్రార్థన చేసుకొని మేరీ క్రిస్మస్, హ్యాపీ క్రిస్మస్ వేడుకలను దీనికి ముఖ్య అతిథిగా మరి స్కూల్ ఆంటోనీ బిషప్, ఆర్చ్ బిషప్ గారు వారికి కూడా పూర్తిగా ధన్యవాదాలు। అదేవిధంగా वज़ीर लेबर मल्ला रेड्डी ने क्रिसमस तकारीब के मौके पर ईसाइयों को मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस सिलसिले में उन्होंने दमाईगुड़े में एक तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने ईसाइयों में कपड़े तकसीम किए। इस तकरीब में मुकामी BRS कायदीन ने भी शिरकत की। ఎవరికి ఎదురు చూడకుండా మన సీఎం కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రం అంతా కూడా పెద్ద ఎత్తున హిందువులకు కానీ, ముస్లింలకు కానీ, క్రైస్తవ సోదరులకు కానీ వాళ్ళ పండుగలకు కొత్త బట్టలు పంపిణీ కార్యక్రమం చేసి కడుపు నిండా భోజనం పెడుతున్న ఘనత మన సీఎం కేసీఆర్ గారు। మనం చూస్తున్నాం, తెలంగాణ రాకముందుకు ఇవన్నీ లేకుండే, బట్టలు పంపిణీ కార్యక్రమం కానీ, భోజనాల కార్యక్రమం కానీ ఏది లేదు। కానీ మన తెలంగాణ వచ్చినాక మన సీఎం కేసీఆర్ గారు పెద్ద మనసుతోటి ప్రతి పేద బిడ్డలకు అందరూ కూడా పండుగలంటే పెద్దగా డబ్బులు ఉన్నోళ్ళే చేసుకుంటారు కాబట్టి పేదోళ్ళు కూడా అందరూ కూడా పెద్దోళ్ళతో సమానం పండుగ చేసుకోవాలని చెప్పి కొత్త బట్టలు పంపిణీ కార్యక్రమం చేస్తున్నాడు మన సీఎం కేసీఆర్। దానికి తోడు మనం అందరం కూడా చూస్తున్నాం, క్రైస్తవ సోదరులు ప్రేమ మనుషులు, మంచి మనసున్న మనుషులు, వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా సేవాభావన కలిగిన వ్యక్తులు, వాళ్ళు ఎప్పుడు నేను గత 50 సంవత్సరాల సంగతి చూస్తున్న వాళ్ళను మంచి పేద విద్యార్థులకు పాఠశాలలు నడిపిస్తారు, మంచి వాళ్ళు హాస్పిటల్లో నర్సు పని చేస్తారు,
వాళ్ళన్నీ కూడా సేవాభావన కార్యక్రమాలు చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకు జీసస్ ప్రభు కూడా మంచిగా ఆశీర్వాదం ఇవ్వాలి. మన సీఎం కేసీఆర్ గారు కూడా వాళ్ళకి పెద్ద ఎత్తున ఈ క్రిస్మస్ గిఫ్ట్ 70 కోట్ల భూమి 2 ఎకరాల స్థలము ఉప్పల్ బగాయత్లో ऑटो एंड मोटर कैब ड्राइवर्स एसोसिएशन ने करप्शन हटाओ तेलंगाना बचाओ के नारे के साथ एहतजाज करते हुए शहर की सड़कों से स्क्रैप ऑटोज को हटाने का मुतालबा किया। इन एहतजाजियों ने कहा कि इन स्क्रैप ऑटोज में बैठने वाले बच्चों की जिंदगियों को बचाने की ज़रूरत है। इन मुजाहिरीन ने सिलसिले में आरटीओ अहदेदारों की लापरवाही, मिलीभगत और रिश्वतखोरी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि इन स्क्रैप ऑटोज में बैठने वालों की जानों को खतरा है। इस एहतजाज के सबब खैरताबाद आरटीओ के करीब कशीदगी फैल गई। अख्तर अहमद प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, मैं आपसे मुतालिबा कर रहा हूँ हुकूमत से कि ये ऑटो जो स्क्रैप के रोडों पर चल रहे हैं, जो सस्पेंडेड आरसी जो कर दिए हैं, उस ऑटो को जल्द से जल्द उसको पकड़ के उनके किफ़रा किरदार तक पहुँचाया जाए। जो ये इसके पीछे साजिशें रची जा रही है, जो गाड़ियाँ स्क्रैप हो चुके हैं, उस स्क्रैप गाड़ियों को रोड पे फिर से चलाया जा रहा है। अब वो ऑटो चलने से हमारे को मासूम जाने बच्चों के जो स्कूल से जो लेके जा रहे हैं ला रहे हैं, वो गाड़ियों में लेके जा रहे हैं, और वो गाड़ियों में लेके जाने से खुदा न खास्ता अगर एक्सीडेंट हो गया, बच्चों को कुछ एक्सीडेंट हो गया ये स्कूल के, तो उसका कौन जिम्मेदार है? हम ये आपसे पूछ रहे हैं। हमारे से मुतालिबा ये है कि वो गाड़ियों को जो सस्पेंडेड आरसी हो गए, जो स्क्रैप गाड़ियाँ हो गए, आज वो गाड़ियाँ रोड पे चल रही, उसको कोई रोका नहीं जा रहा है। वो गाड़ियों को चेकिंग करके स्क्रैप हो जाता गाड़ियों को, उसको रोकिए आप लोग। हम सीवी आनंद साहब कमिश्नर साहब से मुतालिबा कर रहे हैं, हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप वो गाड़ियों को स्क्रैप के जल्द से जल्द पकड़े और उसको किफ़रा करता तक पहुँचाए। इसके पीछे कौन साजिशें रची जा रही है? रिश्वतखोर ऑफिसरों को जो गाड़ियों को स्क्रैप करने के बावजूद उसको प्रोसीडिंग दी गई, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाया गया, फिर उसके बाद वो भी गाड़ियाँ चल रही, नए गाड़ियाँ भी उसके नंबर पे, और पुराने गाड़ियाँ भी स्क्रैप होकर से भी चल रही। वो गाड़ियों को सस्पेंडेड आरसी है, वो स्क्रैप कर दिया। 4 पीस करने के लिए उसको आरटीए में उसको दिया गया था, लेकिन उसको 4 पीस नहीं किया गया, उसको वो फिर से वो गाड़ियों को रोड पे बेचा गया। किसको? मासूम गरीब ड्राइवरों को उनसे पैसा लिया गया, 50, 60, 70 हज़ार में गाड़ी बेचा गया। वो गाड़ियों को कौन बेचा गया, आप उनकी तहकीकात कराइए, वो कौन उनके पीछे है? वो जिम्मेदार आरटीओ खुद है, वो मलकपेट आरटीओ ईस्ट ऑफिस सुभाष रेड्डी साहब, ये महिदीपट्टनम आरटीओ ऑफिस सीपी वेंकटेश्वर राव साहब, ये हमारे जेटीसी साहब पांडुरंगा साहब क्या कर रहे हैं? आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, लिहाजा इसको जल्द से जल्द तहकीकात कराइए और उसको गिरफ्तार के दर तक पहुंचाइए, उसको सस्पेंड करिए, उसको ट्रांसफ़र करिए, आप उसको जेल को भेजिए। हमारा मुतालिबा है ये, हम यूनियन वालों का। बस इसी बात से हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं। इसकी जल्द से जल्द तहकीकात कराइए, इसको जल्द से जल्द उसको माने वेरीफाई करा के इसके इनके गिरफ्तार के दर तक पहुँचाया जाए। बस हमारी बारिश से चलने वाले ज़रूरी माहौलियाती निज़ाम, चैलेंजेस और मौक़े पर एक 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस कल से रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर संतोष नगर में मुनक़िद होगी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए डायरेक्टर डॉक्टर YT सिंह ने कहा कि मुल्क में 142 मिलियन हेक्टर रकबे पर बारिश पर मबनी ज़राअत की खालिस काश्त की जाती है। उन्होंने कहा कि ज़राई पैदावारी सलाहियत और पायदारी मौसमियाती तग़य्युरात के लिए इंतहाई ख़तरे से दो चार हैं, क्योंकि जुनूब मगरिब मानसून पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार की वजह से ख़ासतौर पर खरीफ के दौरान बारिश पर मबनी ज़राअत मौसमियाती तब्दीलियों से बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। Not only for researcher, here at this platform we have farmer, NGOs, the policy makers, and as well as several entrepreneurs, industry people, and many others legendary personality which are directly and indirectly involved with research, development, as well as promotion of the knowledge and technologies. So this is an unique kind of platform where the farmers are joining from mostly from southern states, Orissa, from Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka, some farmer from Maharashtra, also from Uttar Pradesh and other parts of the agri sector. So they are there and they will discuss their views, your knowledge and classes, and the outcome will be further
documented in the form of proceeding, where proceeding means the main ideas which has emerged from the conference that has to be shared among the all the stakeholders, policymakers, as well as researchers, so that future policy, research, and other plans can be made. The main theme of this conference is divided into 8 different sub-themes. 8 symposia are there. First one is resilience through land and water management intervention and water management and its governance. The second symposia will be managing genetic resources for enhanced stress tolerance. The third symposia will be emerging approaches like remote sensing, artificial intelligence, machine learning, drones, etc. for crop management and its. These are newer tools and it is being promoted. You might have listened about drones, use of in agriculture, and how best it can be used for different purposes. It will be discussed. नागर कर्नूल जिले में बीआरएस में शमूलियत का सिलसिला जारी है। टेकलापल्ली मंडल के नड्डीगढ़ा देहात में सरपंच ईश्वरैया की बशमूल कांग्रेस पार्टी के मुकामी कायदीन और कारकुनों ने बीआरएस के एमएलए जनार्दन रेड्डी की मौजूदगी में हुक्मरां जमात में शमूलियत इख्तियार कर ली। रुकन असम्बली ने तमाम को गुलाबी खंडवा पहनाकर हुक्मरां जमात में उनका इस्तकबाल किया। आजमपुरे में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की रिहायशगाह के करीब चंद नौजवानों ने व्हाइटनर का नशा करते हुए नशे की हालत में हंगामा आराई की, जिससे मुकामी अवाम में खौफ देखा गया। इन नौजवानों ने नशे की हालत में गुज़िश्ता रात एक पॉपकॉर्न की दुकान पर भी हमला किया और दुकान का सारा सामान सड़क पर फेंक दिया। इन्हें रोकने वाले मुकामी अवाम के साथ इन्होंने झगड़ा किया और हमले की भी कोशिश की। मुकामी अवाम ने मुतालबा किया कि पुलिस आजमपुरा चमन के इलाके में व्हाइटनर की गैर कानूनी फरोख्त पर पाबंदी लगाए और वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली इस सिलसिले में फौरी कार्रवाई करें। चंपापेट इलाके में मंगल की रात उस वक्त कशीदगी फैल गई जब मुकामी बीजेपी लीडर और सब इंस्पेक्टर के दरमियान बहस और तकरार हो गई। बताया जाता है कि चंपापेट में रोड पर मीर चौक ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम चलाई जा रही थी। उसी वक्त मुकामी बीजेपी लीडर रविंदर रेड्डी, जो सईदाबाद हल्के की कारपोरेटर अरुणा के शौहर हैं, मेन रोड पर बैरिकेड लगाते हुए गाड़ी सवारों की जांच करने पर शदीद एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि इससे ट्रैफिक जाम हो रही है और ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे हैं। इस पर वहां मौजूद ट्रैफिक एसआई गणेश ने बीजेपी के लीडर से खामोश चले जाने का मशवरा दिया, जिस पर बीजेपी लीडर ने बहस और तकरार शुरू कर दी। दोनों के दरमियान काफी देर तक गर्मा गर्म बहस हुई। इत्तला मिलने के बाद सईदाबाद के इंस्पेक्टर सुब्बी राम रेड्डी ने फोन पर दोनों से बात करते हुए मसले को खत्म कर दिया। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामराजू जिले के मारेडुपल्ली के करीब एक बड़ा हादसा टल गया। टूरिस्ट बस ने ठहरी हुई कार को टक्कर दी थी। बस का ब्रेक फेल होने के नतीजे में इसके ड्राइवर ने तवाज़ुन खो दिया और ये बस कार से टकरा गई। इस हादसे में कोई भी जख्मी नहीं हुआ। इस हादसे में कार और बस दोनों को नुकसान पहुंचा। रियासती हुकूमत की इजाज़त के बगैर इंजीनियरिंग कॉलेजेस की जानिब से नए कोर्सेज शुरू करने पर हाई कोर्ट ने बरहमी ज़ाहिर की। अदालत ने कहा कि हुकूमत की जानिब से एनओसी जारी करने से पहले नए कोर्सेस और नशिस्तों की तादाद में इजाफा नामुनासिब है। इस सिलसिले में चीफ जस्टिस उज्ज्वल भुयान, जस्टिस भास्कर रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने ये फैसला सुनाया। बीटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉक टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी जैसे कोर्सेज की नशिस्तों पर इजाफे को JNTU की जानिब से तस्लीम न करने को सवाल करते हुए बाज़ इंजीनियरिंग कॉलेजेस अदालत से रुजू हुए थे। जगतियाल जिले से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने ड्यूटी टाइम में शराब की पार्टी का एहतमाम किया। ड्यूटी टाइम में फॉरेस्ट ऑफिसर्स की दावत पर तनाज़ा खड़ा हो गया है। इस दावत की मेज़बानी सामिल मालिकीन की जानिब से की गई है। इस दावत की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी की सालगिरह के मौके पर उनकी क़यामगाह पर एक तक़रीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें रियासती वज़रा और दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। इन वज़रा और अहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर को केक खिलाया।
इस दौरान गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन ने फोन करते हुए जगन को सालगिरह की मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। YSRCP के कई वज़रा और कायदीन ने भी जगन को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। अटारी वाघा सरहद पर शदीद सर्दी की लहर के दौरान BSF के जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब इन नामुवाफिक हालात में BSF के जवान ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। कोहर के सबब रोशनी कम हो गई है, जिसके नतीजे में मजीद चौकसी इख्तियार की जा रही है। मुल्क में तखरीबकारी स्मगलिंग की कोशिशों की रोकथाम के लिए ये चौकसी इख्तियार की जा रही है। चीन और दीगर ममालिक में कोविड के मामलात में अचानक इजाफे पर मरकजी वजारत सेहत ने रियासतों से ख्वाहिश की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोविड के मुस्बत नमूनों को इम्कानी तौर पर लैब्स भेजें ताकि कोविड की नई शक्ल का जल्द पता चलाया जा सके। वाज़ेह है कि हालिया दिनों के दौरान चीन और अमेरिका में इसके मामलात में इजाफे के पेश नज़र चौकसी इख्तियार करने की मरकजी हुकूमत ने रियासतों को हिदायत दी है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।